everyone, welcome to your own channel. Anuj Genius Labs. You are doing redox reactions, questions, DPPs. See question number 6 on your screen. In an oxidation process for a cell, M1 to M1 N++ an electron, the other metal M2 being very valent, showing reduction takes up to how many electrons in the reaction. So difference देखो, M1 से M1 N+ में जा रहा है, N का डिफरेंस है आपका 0 to N, right? तो N का डिफरेंस है, ऑप्शन क्या मार्क करोगे आप? C. Next, which of the following reaction chlorine act as an oxidizing agent? किसमें क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है? अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको सारे ऑप्शन ध्यान से देखने होंगे. ऑप्शन 1 CH3CH2OH plus Cl2 gives CH3CHO plus HCl. रिएक्शन 2 CH3CHO plus Cl2 CCl3CHO बना रहे हैं, राइट? आप चेक करिए ऑप्शन, इसमें सारे ऑप्शन ध्यान से देख लो. थर्ड ऑप्शन में CH3Cl plus HCl बना रहे हैं. क्या मैं बोल सकता हूँ हर केस में अगर आप HCl बाहर निकाल रहे हो तो यहाँ पे Cl का वैल्यू बढ़ना चाहिए, बिकॉज Cl 0 से एक HCl बाहर कर रहे हैं. सो कंबाइंड Cl is always trying to increase the value, right? So what should be the answer? Answer will be 1, 2 and 3. It's a good question. Question number 8. During a redox reaction, the oxidant K2Cr27 is always reduced to Cr plus 3. Cr plus 3. Potassium permanganate KMnO4 is titrated against ferrous ammonium sulfate Fe plus 2 NH4 SO4 minus 2. The equivalent weight of potassium permanganate is how much? देखो Fe plus 2 Fe plus 3 में जाएगा, अमोनियम का कुछ भी नहीं होगा, सल्फेट कुछ भी नहीं करेगा, but the whole thing is being used in n factor 5. तो आप आंसर मार्क करोगे B. Next question, which conversion is an oxidation? किसमें से कौन सी चीज ऑक्सीडेशन? So SO4 minus 2 से SO3 minus 2 ऑक्सीडेशन नहीं है, कॉपर प्लस 2 से कॉपर ऑक्सीडेशन नहीं है, H minus से H एक ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है. D ऑप्शन मार्क कर लेंगे. Which case +1 oxidation state is stable than +3? Inert pair effect, ये वर्ड आपने सुना होगा. लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन का साइड इफेक्ट ऑब्जर्व्ड इन P ब्लॉक. इनर्ट पेयर इफेक्ट. So if you go down the group, boron, aluminium, gallium, indium, thallium. Thallium shows +1 more stable than the other option. Option number C. Similarly, lead shows as +2 more stable than +4. Okay, being a 14 group member. Similarly, bismuth shows +3 as better than +5. So सबके रीजन सेम ही होते हैं. Inert pair effect बोल सकते हैं आप इसे. Next question. In the reduction of dichromate by Fe2, the number of electrons involved per chromium is how much? So total change will be per member is 3. Net change is 6. So per atom आप 3 बोल सकते हो. K2Cr27 is converted into K2Cr4. The change in oxidation number of chromium is how much? +6 से आप जा रहे हो कहाँ पे? चेक करो. +6 से आप +6 में जा रहे हो तो चेंज कितना हुआ? क्या कोई भी चेंज हुआ? नहीं हुआ. आंसर हो जाएगा 0. Which of the following act as both oxidizing as well as reducing? देखो इसके लिए मिडिल में होना चाहिए, ना बहुत टॉप ना बहुत लोअर. HNO2 के लिए सोच के देखो. HNO2 ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है. आंसर मार्क कर दोगे आप HNO2. I hope you understood all these questions. Please keep watching, liking, subscribing, and share. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on redox reaction. Let's continue our discussion with this new DPP. Question number 1. How many milliliters of 0.5 normal SnCl2 solution will reduce 600 ml of 0.1 normal HgCl2 to Hg2Cl2? 600 into 0.1 is 60 MEQs. उधर पे भी 60 MEQs से मैच होना चाहिए, तो 120 ml ले सकते हो वैल्यू. ऑप्शन हो जाएगा A. Question 2. What weight of FeSO4 will be oxidized by 200 ml of normal KMnO4 solution? Okay. What weight of FeSO4 will be oxidized? तो आप assume कर सकते हो, let's say W ग्राम. So W upon 152, n factor हो जाएगा Fe plus 2 से plus 3 के लिए 1. W upon 152 into 1. 200 ml of one normal KMnO4. 200 into 1. But just understand this 200 should be written as 0.2 into 1. ठीक है, उतना आप कर लोगे, बाकी सब सिंपल है, सॉल्व कर लोगे. आंसर आएगा 30.4 grams. Question number 3. How many milligrams of iron are equal to 1 ml of 1.1055 normal K2Cr27 equivalent? Okay, आप assume कर लो x milligram divided by 56 into 1
will be equal to 1 into 0.1055. That's all. उसको सॉल्व करोगे मैथ्स को, आपको आंसर निकल के आएगा 5.9 milligrams. 5.9 milligrams. Next question number 4. The number of moles of MnO4 minus required to oxidize 1 mole of ferrous oxalate completely in acidic medium. Ferrous oxalate +2 से +3 में जाएगा, oxalate CO4 -2 2 CO2 बनाएगा, n फैक्टर 2 होगा, Fe के लिए n फैक्टर 1 है, नेट n फैक्टर 3 हो गया. नंबर ऑफ मोल्स MnO4 के पूछे मैं आपसे, x एज्यूम कर लो, x into some number, okay, that's n factor will be 1 into 3. So x सॉल्व कर लोगे आप, right? n फैक्टर कितना होता है MnO4 माइनस के लिए 5. So x into 5 is 1 into 3. So आंसर हो गया 3/5. 3/5 is 0.6. वर्बली कर रहे हैं आप क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा. आपने क्वेश्चन के लिए पेन भी यूज कर रहा नहीं है. बेसिक आप देख के सॉल्व कर पा रहे. दिस इज द अप्रोच, राइट, which you should use. Question number 5. A, B, C are 3 elements forming a part of compound in state +2, +5 and -2. What could be the compound? देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, अब इसमें नेट ऑक्सीडेशन स्टेट का वैल्यू चेक करो और वो 0 होना चाहिए. तो हर एक के लिए आप अप्लाई करके देखो. A, B, C, D सबके लिए अप्लाई करोगे. C के केस में 0 आएगा बिकॉज A3BC4 होल ट्वाइस इज 3 times +2 is 6. BC4 5 -2 -2 -2 -2 इसलिए -3 into 2 is -6. तो आपका A3BC4 होल ट्वाइस 0 देगा. Summation of oxidation state and can be marked as an answer for this question. I hope you understood this question. Keep liking, subscribing and sharing all your friends. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel. Anuj Shaji Nasla. We are doing DPPs on redox reaction. Very important topic for grade 11 एग्जाम में. बहुत सारे क्वेश्चंस आपको JEE नीट में मिलेंगे. क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15. In which of the following compound nitrogen exhibits highest oxidation state? सबसे ज्यादा स्टेट कहाँ पे मिलेगा? N को. N3H में H+1 है, N नेगेटिव 1/3 होगा. NH2OH में N नेगेटिव होगा, NH4 में नेगेटिव होगा, NH3 में भी N नेगेटिव होगा. बट हाईएस्ट कहाँ पे मिलेगा? -1/3 इज द हाईएस्ट नंबर. आंसर हो जाएगा A ऑप्शन. Question 16. 1 mole of MnO4 -2 in neutral aqueous medium disproportionate into. MnO4 -2 को अगर disproportionate करना होगा तो ये higher जाएगा, MnO4 माइनस में lower जाएगा, Mn+4 पे. तो इसका आंसर बन जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए. ध्यान से देखो, ओके, ए ऑप्शन. 2/3 of this and then 1/3 of MnO. Right? Please mark that option. Question 17. Which of the following compound does not decolorize an acidic solution of MnO4? Basically कौन सी चीज में ऑक्सीडाइज नहीं हो पाई जहाँ पे हाई स्टेट में ऑलरेडी हो. अब Fe+2 में तो कोई दिक्कत नहीं, +3 में चला जाएगा. बट व्हाट अबाउट अगर Fe+3 में पहले से ही तो कुछ भी नहीं कर पाओगे आप. जैसे कि FeCl3 ऑप्शन को ध्यान से देखिए, इट कैन नॉट बी ऑक्सीडाइज्ड. क्वेश्चन नंबर 18. 1 mole of MnO4 react with HCl. The volume of Cl2 liberate at NTP is how much? MnO4 की HCl से रिएक्शन करोगे, MEQs दोनों के इक्वेट कर लो, MEQ इक्वेट करोगे, आप सॉल्व करोगे, वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन निकल के आएगा 56 लीटर एट NTP. बेसिकली आपको पता है 1 मोल इज 22.4 लीटर्स. उसी मैथ्स को यूज करके आप टोटल वॉल्यूम निकाल सकते हैं. चेक आउट द सॉल्यूशन आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट वुड हैपन व्हेन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एडेड टू अ सॉल्यूशन ऑफ FeSO4? एक आपने टर्म सुना होगा फेंटन्स रिएजेंट. अगर नहीं सुना तो पढ़ोगे आप, ठीक है, उसी से लिंक है ये रिएक्शन. इलेक्ट्रॉन इज लॉस्ट बाय Fe+2. ओके, सो Fe+2 Fe+3 प्लस इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जाएगा. H2O2 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयोडीन इन IPO4. IPO4 में क्या वैल्यू होगी? PO4 -3 आपको पता है, तो I क्या हो जाएगा? सीधा सीधा +3 कर लेंगे. Simple the question. I hope you understood all these questions. So with this DPP comes to an end. Thank you so much. Thanks for 60,000 plus subscribers on the channel. We are growing day by day with all of you. Thank you for watching. Greetings everyone, welcome to your own channel. Anuj Shaji Nasla. We are doing PYQs and DPPs on redox reaction. Important topic. Let's see certain more questions. Question number 3. In the course of chemical reaction, an oxidant is oxidizing agent. So oxidizing agent दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद रिड्यूस हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा. ऑप्शन बी मार्क कर लो. क्वेश्चन नंबर 4. इन अल्कलाइन कंडीशन ऑफ KMnO4 रिएक्ट एज. एक इक्वेशन गिवन है आपको, इक्विवेलेंट रेट पूछा गया. देखो KMnO4 +7 से कहाँ पे जा रहा है?
K2MnO4 प्लस 6 में जा रहा है, 7 से 6 में जा रहा है, देखिए चेंज यहाँ पे 1 का होगा। अगर 1 का चेंज हुआ तो आप इसका इक्विवेलेंट वेट कितना बोलोगे, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन n फैक्टर। सो व्हाट शुड बी द आंसर, आंसर विल बी बी 158, जो कि मॉलिक्यूलर वेट ही होता है। क्वेश्चन 5, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन सिल्वर नाइट्रेट। ऑलवेज ब्रेक दीज थिंग्स, Ag+1 होगा, n पता नहीं मुझे, ऑक्सीजन इज -2 के 3 यानी -6 और +1, तो आपको वैल्यू मिल चुका है, आंसर आ जाएगा 5 +5। रिमेंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट जब भी पॉजिटिव होगी तो वैल्यू प्लस के साथ लिखते हैं, अदरवाइज सिर्फ आप ऐसे नंबर नहीं लिख सकते, आपको प्लस और माइनस सिंबल यूज करना ही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल AlF3 molecule in a sample of AlF3 containing 3.01 10 power 23 ions of F-। जितने आयंस की आप बात कर रहे हो उसको आप एक काम करो, उसको निकालने के लिए आप 3 से डिवाइड कर दो। दिस इज हाफ मोल बेसिकली, सो हाफ मोल है और ये आपके F- आयंस है, तो अगर 3 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को AlF3 के आयंस मिल जाएंगे, यानी हाफ का 1/3। और वी कैन सिंपली से the total number of AlF3 molecules in a sample of this AlF3 consisting F-। तो वैसे भी कर सकते हो आप, इस पूरे नंबर को आप 1/6 से डिवाइड कर दो तो भी आपको आंसर यहाँ से मिल जाएगा, राइट। 1/3 से डिवाइड कर दो तो भी आंसर मिल जाएगा। तो आंसर क्या निकल के है, ऑप्शन आ जाएगा आपका डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन NOCl, NO + Cl-, तो n का वैल्यू क्या होगा, n का वैल्यू होगा +3, O is -2। Oxygen is more electronegative, ध्यान रखिएगा, as compared to nitrogen। Question number 8, the oxidation state of chlorine is highest in which compound? Cl2O7 में क्लोरीन होगा +7 which is highest, Cl2O में +1, HCl में -1 और Cl2 में 0, so we can mark the answer as D। How many grams of KMnO4 are contained in 4 liter of 0.05 normal solution? The KMnO4 is to be used as an oxidizing agent in acidic medium। अब आपसे W पूछा हुआ है, 4 लीटर ऑफ 0.05 नॉर्मल, सो 4 × 0.05 से आप ग्राम इक्विवेलेंट निकाल लो, ग्राम इक्विवेलेंट से आपको एसिडिक मीडियम गिवन है तो आप 5 से डिवाइड करके मोल्स निकाल लो। ओके, सो 4 × 0.05 इज 0.2, 0.2 डिवाइडेड बाय 5 × 158, 0.2 डिवाइड बाय 5 × 158 कितना होगा, 25 का डिवीजन जाएगा 158 में। ओके, सो वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, yes, which option you can mark? Option आप मार्क करोगे यहाँ पे 6.32 grams। I hope the question is pretty much clear. Please keep liking, subscribing and sharing. Tell your friends also about this channel. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing PYQs and DPPs on redox titration. Question number 18 on your screen, stronger is the oxidizing agent, more is। देखो जितना अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसकी ऑक्सीडाइजिंग कैपेसिटी ज़्यादा होगी। ऑप्शन है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ दैट स्पीशीज, द टेंडेंसी टू गेट इटसेल्फ ऑक्सीडाइज्ड, द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन बाय दैट स्पीशीज, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ दैट। व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, मोर E0RP। देखो जितना ज़्यादा E0RP होगा वो खुद रिड्यूस हो जाएगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर लेगा, यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा हो जाएगी, राइट। सो दिस इज द क्वेश्चन, आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 19, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 आर नीडेड टू प्रिपेयर 3.75 लीटर ऑफ 0.850 नॉर्मल सॉल्यूशन इफ KMnO4 इज रिड्यूस्ड एज दिस इक्वेशन। कैसे करोगे सॉल्व, ग्राम्स ऑफ KMnO4 पूछा आपसे, राइट, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ KMnO4 नीडेड टू प्रिपेयर दिस, 3.75 लीटर है इंटू 0.850 कर दो, यहाँ से आपके ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे। ग्राम इक्विवेलेंट्स को आप इसके n फैक्टर देखो यहाँ पे डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, डिवाइड कर दो 5 से, मोल्स आ जाएंगे, इनटू 158 जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है उससे आप मल्टीप्लाई कर दो तो वहाँ से आपको वैल्यू मिल जाएगी, आंसर आएगा 100.7 ग्राम्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 20, when KMnO4 is reduced with oxalic acid H2CO4 in acidic medium, oxidation number of Mn changes from +7 to, see acidic केस में इसका वैल्यू होता है 7 से 2 यानी कि 5 का चेंज। इसके लिए मैं कोड दे रहा हूँ, नोट कर लीजिए, कोड इज BNA135, बेसिक न्यूट्रल एसिडिक 135। बेसिक मीडियम में KMnO4 जाता है K2MnO4 में +7 से +6, 1 का चेंज। न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 जाता है MnO2 में +7 to +4, 3 का चेंज। एनासिडिक मीडियम में जाता है +7 to
+2 5 का चेंज, तो आंसर हो जाएगा BNA 135. दिस विल बी योर आंसर. ओके, नाउ next question number 1. Addition of zinc powder to copper sulfate solution precipitates copper due to. क्यों करता है precipitate? Because copper +2 copper में convert हो जाता है, right? So zinc powder इसमें convert हो जाएगा. तो what's the answer? Answer will be option number A. Question number 2. Titration in which liberated iodine is estimated to carry out the volumetric estimations are known as. देखो जहाँ पे आयोडीन यूज होगा उसको बोलते हैं आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन, लिबरेटेड आयोडीन. और जब आयोडीन से आप रिड्यूस कर रहे होगे तो उसको दूसरा नाम देते हैं आयोडीमेट्रिक. बताऊंगा इसके बारे में. आयोडीमेट्रिक टाइट्रेशन आप उसको लिख सकते हैं. आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. ओके, एनी डिफिकल्टी इन दिस पार्ट? ओके, एनी डिफिकल्टी, एनी इश्यूज? So I hope you understood all these questions. Keep liking, subscribing and sharing this video. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on redox reaction. Let's see certain questions. Question number 10. The reaction H2S plus H2O2 gives 2H2O plus sulfur shows which nature? Oxidizing, reducing, alkaline, acidic. ध्यान से देखो, इसमें ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करोगे H2O2 -1 से किस में जा रहा है? -2 में जा रहा है, राइट? बट सल्फर -2 से 0 में जा रहा है. तो सल्फर को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है? H2S को H2O2. तो ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ H2O2 मार्क कर सकते हैं. ऑप्शन सी आप मार्क कर सकते हैं इस क्वेश्चन. क्वेश्चन 11. Question 11 is for the redox reaction MnO4 minus CO4 minus 2 plus H plus this is given coefficient of reaction in the balanced stages. अब ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजें ध्यान रखनी होगी. MnO4 माइनस +7 से +2 में जा रहा है तो 5 का चेंज है, एंड ऑक्सलेट +3 से +4 में जा रहा है तो 1 का चेंज है. बट C2 है, C2 दो कार्बन है तो नेट चेंज 2 का है. तो 2 और 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप. 2 का मल्टीप्लाई जाएगा MnO4 में, 5 का मल्टीप्लाई जाएगा C2O4 में. तो कोई ऑप्शन जहाँ पे 2 और 5 कॉम्बिनेशन दिख रहा है अपने को, वो मोस्ट लाइकली ऑप्शन होता है. ऑप्शन ए ध्यान से देखिए, ऑप्शन ए में आपको 2 और 5 का कॉम्बिनेशन मिल रहा है, यही ऑप्शन बनेगा बाद में आप H प्लस बैलेंस कर लोगे, वाटर एयर करस्पॉन्डिंग 16 H प्लस हो जाएगा. तो आंसर हो जाएगा 2 MnO4 माइनस प्लस 5 CO2 माइनस 2 प्लस 16 H प्लस गिव 2 MnO प्लस 2 प्लस 10 CO2 प्लस 8 H2. क्लोरीन हैज +1 ऑक्सीडेशन स्टेट इन. क्लोरीन का +1 स्टेट कहाँ पे मिलेगा? क्या HCl में मिलेगा? H+1 Cl -1 HClO3 में. Cl इज हाउ मच? +5 बोल दूं. Cl2O में +1 and ICl3. Cl is -1 and I is positive, right? तो मैक्सिमम कहाँ पे मिल रहा है मुझे? ऑप्शन सी +1 मिल रहा है एंड +5 आपको मैक्सिमम है, बट +1 पूछा हुआ है तो आप सी ऑप्शन मार्क कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Which of the following statement is incorrect? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है? Oxidation of a substance is followed by reduction of another. एक का ऑक्सीडेशन होगा तो दूसरे का रिडक्शन होगा. रिडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अनदर. एक का रिडक्शन होगा तो दूसरे का ऑक्सीडेशन होगा. दोनों बातें ठीक है, बिकॉज ऑक्सीडेशन अकेले नहीं हो सकता, रिडक्शन अकेले नहीं हो सकता. ऑक्सीडेशन रिडक्शंस आर कॉम्प्लीमेंट्री रिएक्शन, बिल्कुल सही बात है. बट क्वेश्चन इज इनकरेक्ट कौन सा है, गलत कौन सा है स्टेटमेंट. इट इज नॉट नेसेसरी दैट बोथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन शुड टेक प्लेस इन द सेम रिएक्शन. दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट. Whenever you do that half reaction, आप बोलते हैं Na becomes Na plus, that half reaction will always have a counterpart. अगर आप नहीं भी लिख रहे हो तो उसका counterpart होगा कहीं ना कहीं, right? तो ध्यान रखिए, आंसर हो जाएगा D. Next question number 14. In the standardization of Na2S2O3 using K2Cr2 by iodometry, okay, equivalent weight of K2Cr2 is how much? देखो Na2S2O3 के लिए बात करोगे तो +2 से 2.5 में जाने के लिए वैल्यू change is 0.5, net change is 1, और K2Cr2 Cr जो है वो आपका +6 से +3 में आ रहा है. +6 से +3 में ध्रुव ब्रोमीन के साथ आ रहा है तो n फैक्टर्स का 6 होता है, तो आप 6 से डिवाइड करोगे तो बी ऑप्शन मार्क करना लॉजिकल. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. When sulfur dioxide is passed in a solution of potassium iodate, the oxidation state of iodine changes from. आयोडेट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, पर आयोडेट इज IO4 माइनस, आयोडेट इज IO3 माइनस. IO3 माइनस आयोडीन में चेंज होगा तो -2 × 3 एंड -1 बाहर लगा हुआ है तो मैं बोल सकता हूँ +5 बिकम्स व्हाट? -1 या 0. कौन सा ऑप्शन मार्क करेंगे? ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन 16.
The halogen that shows same oxidation state in all its compound with other elements is fluorine. Fluorine हमेशा क्या शो करेगा? -1. Okay. Question 70. The reaction of P4NaOH plus water giving sodium hypophosphite plus phosphine is an example of disproportionation. एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होना बोला जाता है इसे डिसप्रपोर्शनेशन. ध्यान से ऑब्जर्व करिए, फास्फोरस 0 से pH3 यानी कि -3 में जा रहा है, इन NaH2PO2 यानी कि +1 में जा रहा है. तो सेम फास्फोरस 0 ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है. आई विल कॉल इट डिसप्रपोर्शनेशन. अच्छा, इसकी रिवर्स रिएक्शन को क्या बोलते हैं? अगर कोई चीज दो स्टेट से कंबाइन होकर एक कॉमन स्टेट में जा रहा है, उसको बोलते हैं कॉम प्रपोर्शनेशन. ओके, दैट्स अदर वे अराउंड. नेक्स्ट इज question number 18. Titrations in which I2 solution is used as an intermediate are known as. I2 solution जहाँ पे intermediate के रूप में यूज होता है उसको बोलते हैं iodimetric titration. Okay, iodimetric titration. Question number 19. In the reaction dichromate 14H plus 6I- is giving you this. Which element is reduced? किस चीज की वैल्यू कम होती देख पा रहे हो आप? क्रोमियम +6 से क्रोमियम +3 में जा रहा है, दैट्स अ रिडक्शन. सो Cr2O7 -2 में क्रोमियम कम हो रहा है, ऑप्शन डी मार्क करेंगे. Another question, number 20. Carbon reacts with oxygen to form two oxides CO and CO2. This is because, देखो CO और CO2 बनाने का रीजन क्या है? इसकी क्या क्या वजह हो सकती है? कार्बन हैज 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म्स, नहीं, इसका रीजन नहीं है. कार्बन हैज 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स, मेक सेंस. Oxygen donates as well as accept electrons. Oxygen has strong affinity of carbon. So answer will be B option. दो different states यहाँ पे exist कर सकती है. I hope you understood all these questions. Please keep liking, subscribing and sharing. Thank you. Greetings everyone, welcome to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. Now we are doing a new set of DPPs of a topic named chemical bonding. काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है केमिकल बॉन्डिंग, सभी को बहुत मजा आता है इस टॉपिक में. क्वेश्चन भी बहुत सारे एग्जाम्स में आते हैं. ठीक है, आप जेई लिखो, नीट लिखो, बोर्ड लिखो, सब जगह पे आपको हेल्प करेंगे क्वेश्चंस. तो ये पूरे सेशंस जो होंगे इसके केमिकल बॉन्डिंग की पूरी सीरीज जो होगी, इसमें बहुत सारे डीपीपी मैं डिस्कस करूंगा. ठीक है, ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा डीपीपी डिस्कस करूंगा, पीवाईक्यूज करूंगा. तो आप इसको पूरा एक तरफ से फॉलो कर सकते हैं और यहाँ से लर्निंग आपको काफ़ी सारी मिल सकती है. स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 1. The true statement from the following are PH5 and BiCl5 do not exist. Option 1 लिखा हुआ है. P-pi D-pi bond is present in SO2. मैं इसके डिटेल में भी जाऊंगा, हर एक पॉइंट को एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो. Electrons travel at the speed of light. Okay. आपसे पूछा गया true statement कौन कौन सी है? SeF4 and CH4 have same shape. I3 plus has bent geometry. इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट ठीक है? चलिए स्टेटमेंट में शुरू कर लेते हैं. पहले तो पी पाई और डी पाई को समझो. पी पाई डी पाई क्या होगा? पी ऑर्बिटल और वीकेंड डी ऑर्बिटल, इसके बीच में बॉन्ड बना रहे हो, राइट? जैसे कि सोच के देखिए, एग्जांपल के तौर पे CCl3-. CCl3- में क्या होगा? क्लोरीन हैज वेकेंट डी ऑर्बिटल, कार्बन हैज नेगेटिव चार्ज, सो दैट नेगेटिव चार्ज कैन बी डिस्पोज्ड इन वेकेंट डी ऑर्बिटल ऑफ क्लोरीन. अगर ऐसा हुआ तो क्लोरीन का पी ऑर्बिटल और क्लोरीन का डी ऑर्बिटल और कार्बन का पी ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे होंगे. तो यहाँ पे क्या मिला मुझे? 3p pi 3d pi kind of situation या 2p pi 3d pi kind of situation. Remember carbon is 2p, so 2p pi 3d pi kind of situation. ठीक है. अब इस क्वेश्चन में पूछा है SO2 में क्या होगा? क्या SO2 में ऐसी अवेलेबिलिटी है? आंसर इज यस. ऑक्सीजन के पास p ऑर्बिटल है, सल्फर के पास वेकेंट d ऑर्बिटल है, तो हो सकता है. ऑप्शन 1 PH5 and BiCl5 do not exist. बिल्कुल ठीक बात है. स्मॉल साइज हाइड्रोजन फास्फोरस के अराउंड 5 नहीं रख सकते आप, और BiCl5 भी एग्जिस्ट नहीं करता. Bi की स्मॉलर वैलेंसी ज्यादा स्टेबल होती है, राइट? तो इवन वो +3 से +1 की तरफ पढ़ना चाहते हैं. अच्छा जी. इलेक्ट्रॉन्स ट्रेवल एट स्पीड ऑफ लाइट, रॉन्ग. SeF4 एंड CH4 हैव द सेम शेप. इनका शेप सेम होगा. शेप कैसे निकालोगे? CH4 का शेप हो गया टेट्राहेड्रल. SeF4 इज इन द ग्रुप ऑफ सल्फर, SF4 शेप हो गया, व्हिच इज सीसॉ शेप. तो सीसॉ शेप में आपके पास ऑप्शंस दोनों मैच नहीं करेंगे. I3 plus is a bent geometry. I3 plus के स्ट्रक्चर में आयोडीन के साथ प्लस चार्ज लगाया तो 6 हो गए, 2 बॉन्ड्स हो गए, 2 नॉट पेयर हो गए. Yes, it is a bent geometry. sp3 hybridized. So what's my answer? Answer will be 1, 2 and 5. डिटेल क्वेश्चन है. एक ही क्वेश्चन में 5 क्वेश्चंस छुपे हुए हैं. तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व करते हो आपके कॉन्सेप्ट्स काफी ज्यादा क्लियर हो जाते हैं.
I hope you understand this whole question. Question number 2. 1,3-butadiene has how many sigma and pi bonds? आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो. 1,3-butadiene का 2 डबल बॉन्ड्स है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड अ डबल बॉन्ड. जहां जहां पे डबल बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है और जहां जहां पे सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है. तो कितने पाई बॉन्ड मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे? 2 पाई बॉन्ड दिख रहे हैं. कितने सिग्मा बॉन्ड्स दिख रहे हैं? एक CH2 इधर होगा तो 2 सिग्मा बॉन्ड, एक CH2 इधर होगा 2 सिग्मा बॉन्ड, राइट. दोनों जो कार्बन आपने 4 लिखे हुए हैं उन चारों कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड, राइट. तो सारे ऐड करके आप निकालो टोटल कितने बॉन्ड, राइट, इंक्लूडिंग हाइड्रोजन आप काउंट कर लेना और जो बीच में H हैंग करेंगे उनको भी काउंट कर लो. तो आंसर आएगा 9 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स. 9 sigma and 2 pi bond will mark option number C. Question number 3. The bond between atoms of two elements of atomic number 37 and 53. देखिए 37 53 को पहले ट्रैक करना पड़ेगा कि ये दोनों हैं कौन से मेंबर. एक है रुबीडियम, राइट, और एक है आयोडीन. रुबीडियम और आयोडीन. रुबीडियम आ रहा है आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम यहाँ पे, और आयोडीन आपका आ रहा है दूसरी तरफ, राइट. इनके बीच में बनने वाला बॉन्ड कैसा नेचर रखेगा? कोवेलेंट, आयोनिक, कोऑर्डिनेट और मेटालिक. एक्सट्रीमली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स को क्लब करके आप एक बॉन्ड बनाना चाह रहे हो तो उसका नेचर क्या होगा? आयोनिक बॉन्डिंग, राइट. आंसर विल बी बी ऑप्शन. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल दीज क्वेश्चंस. ओके, सी यू इन द नेक्स्ट DPP. थैंक यू सो मच फॉर लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग. Welcome everyone to your own channel, Anuj Mishra Genius Labs. We are doing DPPs on topic named chemical bonding. Very interesting topic. Let's continue that series. Session number 2. In methane, the bond angle. Question number 4 आपकी स्क्रीन पे. In methane, the bond angle कितना है? 180, 90, 109, 120. Actually, exact answer is 109 degrees 28 minutes. So C option mark करोगे. Question number 5. One would expect the elemental form of cesium at room temperature to be. सीजियम का एलिमेंटल फॉर्म किस तरीके से होगा? मेटल होगा और सॉलिड होगा, है ना. मेटालिक सॉलिड बोल सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. Which of the following is false? Glycerol has a strong hydrogen bonding. ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन का स्ट्रक्चर होता है CH2OH, CH1, CH2OH, तीन OH है. H बॉन्डिंग कर सकता है, बिल्कुल ठीक है. ग्लाइकॉल इज अ पॉइजनस अल्कोहल. ओके, आपसे फॉल्स पूछा है, बिल्कुल ठीक है. ग्लाइकॉल एक पॉइजनस अल्कोहल है. Waxes are esters of higher alcohols with higher acid. Make sense? Alkyl halides have higher boiling point than corresponding alcohols. देखो alcohols का boiling point ज़्यादा होगा क्योंकि इनके पास OH है और OH के अंदर H bonding हो सकती है, क्लोरीन में नहीं कर पाओगे. So which option you will mark? Option D is false. I'll mark option number D. Question number 7. Ionic radii are proportional to. Multiple options लिखे हैं. 1 upon effective nuclear charge. 1 upon effective nuclear charge whole square, effective nuclear charge or effective nuclear charge whole square. Basically they are talking about Z effective. Ionic radii का जब आप फॉर्मूला लिखते हो तो लिखते हो n square A naught upon Z effective. तो which is the correct option among these? Option number A. कर पाएंगे? Effective nuclear charge के inversely proportional value होगी. See another question number 8. Which of the following statement is incorrect? He2 does not exist but its bond order is 0. डज नॉट एग्जिस्ट भी बोल रहा है और बोल रहा है बॉन्ड ऑर्डर इज 0. तो बोल रहा है इनकरेक्ट है क्या इसमें से कौन सा स्टेटमेंट, राइट. सो ऑफ कोर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब है बॉन्ड ऑर्डर 0 है, राइट. चलो इस स्टेटमेंट के बाद आगे चलते हैं. O2 minus O2 plus all are paramagnetic. O2 is paramagnetic, correct. O2 plus yes, O2 minus ये भी ठीक है. आंसर मार्क कर लोगे. थर्ड ऑप्शन. Any two atomic orbitals can combine to form two molecular orbitals. Can we combine any two atomic orbital to get molecular orbital, or it should be of same energy and all these things? Option C is not appropriate. Option D. Pi 2px and pi 2py are degenerate molecular orbitals. Degenerate means equal energy orbitals में आप consider कर लो pi 2px और pi 2py को. That makes sense. Option C is a wrong statement, so we are supposed to mark C. Question number 9. Which of the following pairs will form the most stable ionic bond? आयनिक बॉन्ड अच्छा बनाने के लिए क्या चाहिए होगा? एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, राइट. या आप ऐसे कर सकते हो, एक ऐसा एलिमेंट जिसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा हो और एक ऐसा एलिमेंट जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम हो. तो वो कॉम्बिनेशन आपको ढूंढ के लाना है. मेरे पास ऑप्शंस में गिवन है NaCl, MgF, LiF एंड सोडियम फ्लोरीन. फ्लोरीन कैन बी रेडी बेटर. मैग्नीशियम फ्लोरीन इज अ बेटर चॉइस देन सोडियम फ्लोरीन. तो आप ऑप्शन मार्क करोगे MgF का, ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 10.
NaF, NaCl, NaBr, NaI and NaF has highest melting point because, इसके लिए आंसर पूछा गया है मैक्सिमम आयनिक कैरेक्टर, मिनिमम आयनिक कैरेक्टर करके ऑप्शंस है. स्मॉल साइज कैटायन, लार्ज साइज एनायन, more polarizing power of cation and more polarization with anion. Which option we can mark? Answer will be A option. Check any option. It has maximum ionic character. I hope you understood all these DPPs. See you in the next DPP. Thanks for liking. Greetings everyone. Welcome to your own channel Anusha Genius Labs. We are doing DPPs on chemical bonding. Let's continue this discussion. Question number 11 on your screen. The planar structure of BF3, boron trifluoride, can be explained by the fact that BF3 is sp, sp2, sp3 and sp3 dehybridized. देखिए बहुत सिंपल सा तरीका देता हूँ मैं आपको. हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक बिल्कुल सिंपल मेथड, बहुत ही इजी मेथड, कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ नहीं. आप उस ग्रुप पे जाओ, उस पर देखो वहाँ पे कितने आउटरमोस्ट में इलेक्ट्रॉन होते हैं, उस एलिमेंट को मार्क करो, इतना आपको टेबल के बारे में आइडिया होना चाहिए. बोरॉन के आइटमोस्ट पे 3 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तीनों फ्लोरीन से लिंक है और कोई लोन पेयर नहीं है, तो 3 सिग्मा बॉन्ड होगा. सिंगल बॉन्ड इज सिग्मा, डबल इज 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल इज 1 सिग्मा 2 पाई. 3 सिग्मा बॉन्ड, 0 लोन पेयर, 3 + 0 इज 3 और 3 जैसे ही मिला 2 के केस में sp, 3 के केस में sp2, 4 के केस में sp3, 5 के केस में sp3d. ये स्टैंडर्ड हाइब्रिडाइजेशन आपको आने चाहिए. तो आप क्या मार्क कर दोगे? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यस बी, sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड sp2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. The correct order of bond order value among the following. Bond order की वैल्यू की बात चल रही है. मल्टीपल क्वेश्चंस आपको गिवन है यहाँ पे. NO-, NO+, NO, NO2+. बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाली जाए? देखो NO की बॉन्ड ऑर्डर हमें पता है. NO की बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं, या NO+ की कैसे निकालते हैं? NO+ की बॉन्ड ऑर्डर 3 होती है, which is same as नाइट्रोजन, which is same as Cn-, ये सबको पता है. NO+ से जैसे आप NO पे जाओगे तो बॉन्ड ऑर्डर वहाँ पे क्या होगी? चेंज हो जाएगी. लिख लीजिए. NO- की बॉन्ड ऑर्डर है 2, NO+ की 3, NO की 2.5. जैसे आप NO पे जाओगे 2.5 हो जाएगी. Na2+ पे 2.5, NO2- पे आपकी बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगी 1.5. सारी वैल्यूज को एक बार अरेंज कर लो. बॉन्ड ऑर्डर निकालते कैसे उसका भी मेथड आपको आना चाहिए. सिग्मा 1s2, सिग्मा 1s*2, all those things we write, right? Sigma to pz, pi to px, pi to py, we know all those things, right? Remember, when you start NO is 7 + 8, 15. It is no exception. So you have to write sigma first, then pi, and then remove electron. Don't think कि remove electron करते ही आपके पास वो B2C2 N2 structure बन जाएगा. ऐसा नहीं सोचना. Okay? So answer you can mark for this particular question. Answer will be option number C. Question number 13. The bond between chlorine and bromine in BrCl3 is. BrCl3 में ब्रोमीन और क्लोरीन के बीच में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल है, राइट? ऑफ कोर्स. ओके, तो पोलैरिटी वहां पे है. Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव एंड कहां पे फॉर्म होगा? क्लोरीन पे. पोलर विद नेगेटिव एंड ऑफ Cl. ऑप्शन विल मार्क एज ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज अ रेगुलर टेट्राहेड्रल शेप? टेट्राहेड्रल शेप का सीधा एग्जांपल NiCN4- मत मार्क करना. DsP2 है, स्क्वायर पेयर है. NiCN5 3- भी मत मार्क करना. DsP3 है, अगेन स्क्वायर पिरामिडल है. SF4 मत मार्क करना, रेगुलर टेट्राहेड्रल नहीं है. ओके. BF4- आप मार्क कर सकते हो. BF4- लाइक CH4, लाइक we can say SO4- like PCl4+, like any number of examples I can take, ClO4- or what not. Option C will be your choice. Option D भी नहीं हो सकता. XeF4 planar हो जाएगा. Question 15. Which of the following will have the large dipole moment? देखो डाइपोल मोमेंट अगर आप ऐसा समझ सकते हो, एक पुलर है और एक पुशिंग ग्रुप है, अगर अलाइन हो जाता है और एक डायरेक्शन में मूव करता है ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट, सो ये हाई हो जाती है वैल्यू. चेक ऑप्शन सी. NH2 is a puller, NO2 is a puller, right? NH2 is a pusher, NO2 is a puller. So which option will have the maximum dipole moment value? Option A, B, C and option D भी देखिए आप. NH2 and NO2. Which case it is aligned in one direction? ऑप्शन नंबर सी. सी इसका आंसर होना चाहिए, राइट? ओके. नेक्स्ट केस. हाई पूछा आपसे, लेस पूछा है. लार्ज पूछा हुआ है ना. लार्ज के लिए ऑप्शन सी, लेस के लिए ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 16. PCl5 exists but NCl5 do not exist. The reason. इसके ऑप्शंस आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए. नाइट्रोजन हैज नो वेकेंट 2d ऑर्बिटल. 2d छोड़ो, उसको 3d चाहिए, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं है, राइट?
So NCl5 is unstable. Nitrogen atom is much smaller than phosphorus. Nitrogen is highly inert कहना चाहते हैं, right? PCl5 exist कर रहा है, NCl5 नहीं. Best answer क्या होगा? There's nothing called 2D and all, right? So option is there is no vacant orbital. You can mark. Question 17. Which of the following pairs of two species are not isostructural? कौन से isostructural? दोनों के structure same नहीं है. Options check करिए. Carbonate, nitrate, same structure है, trigonal planar बन जाएगा. AlF6 3 minus SF6 same structure है, बन जाएगा. Check option B. PF5 and BRF5. Okay. PF5 and BRF5 क्या इनके structure same होंगे? Yes. ब्रोमीन के पास एक एक्स्ट्रा लोन पेयर है. इट वोंट बी सेम. आंसर विल मार्क बी ऑप्शन. कैन वी सॉल्व सच क्वेश्चंस? आर यू अंडरस्टैंडिंग दीस क्वेश्चंस? क्या आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. द मॉलिक्यूल हैविंग पिरामिडल शेप आउट ऑफ द फॉलोइंग इज अमोनिया. सीधा सीधा क्वेश्चन है, इसमें क्यों टाइम वेस्ट करना? अमोनिया सबको पता होता है पिरामिडल. क्वेश्चन 19. इफ Na इज लार्जर देन Mg+2 and S-2 is larger than Cl-, which of the following is stable soluble in water, right? So देख कैसे करेंगे. ऑप्शन आप यहाँ पे ऑप्शन चेक कर लो. सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फाइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड. आपको चूज करके लाना है ऑप्शन जहाँ पे आपका जो कैटायन है उसका साइज क्या वो स्मॉल हो और एनाइन का साइज बिग हो. वो कॉम्बिनेशन कौन सी है? स्मॉल कैटायन लार्ज एनाइन की. वो आपका आंसर बन सकती है. ऑप्शन डी चेक करिए. ऑप्शन डी वी कैन मार्क. ओके, option D is our answer. I hope you understood this DPP. Thank you so much for liking, subscribing, sharing.